this is Dr. Gitanjali and welcome all of you to the weekly prediction from the 30th of June to the 6th of July. Let us see how is it going to be for the various zodiac signs, and always we start with Aries yani ki Mesh Rashi se we are starting. Extremely good cards. We have pulled up the Judgment card. Now you know when you pull up the Judgment card there are things which are going to happen in your life which you have not dreamt about. It is basically the universe trying to tell you that you need to walk on a straight path and everything will be given to you. Now, this judgment is not about the judgment of the last day of the judgment, even though that is the meaning of the card. But for me, this card means that whatever is your positive karma in your lifetime, which you have done, accumulated in this lifetime plus the previous lifetime, the time has come for you to get the benefit of it. The time has come for you to get the entire ball rolling. So whatever good things you are thinking for this week, जो भी आप सोच रहे हो, whatever you want to do in life, you please do it and it's going to be great for you. And the second card which I am pulling up is also one more card which is not very comprehensive or as good as a judgment card because it's a minor arcana. Yet this card indicates that you have the guts, you have the courage, you have the confidence to go ahead. But somewhere down the line, this confidence and this courage is not being shown to you. You are not innately realizing it. आपका जो कॉन्फिडेंस करेज है वो आपको पता ही नहीं चल रहा है कि क्या करना है आपको, क्या नहीं करना है आपको. द यूनिवर्स इज गिविंग यू, जैसे मैंने कहा पॉजिटिव कर्मा का टाइम है, द यूनिवर्स इज गिविंग टू यू, बट आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है एंड यू आर स्टिल वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम एंड इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट टाइम. मैं तो ये कह रही हूँ कि रिश्तों के लिए बहुत अच्छा समय है. अगर आपके घर में कोई वाद विवाद है किसी के बीच में भी, ये समय आप कोशिश करिए सब लोग डिप्लोमेटिकली बैठे, थोड़ी सी कम्युनिकेशंस करें और 100% जो भी विवाद है वो खत्म हो जाएगा. इट्स एन एक्सलेंट टाइम फॉर करियर ऑल्सो एंड द करियर ग्रोथ, डूइंग न्यू थिंग्स, बाइंग न्यू थिंग्स, सेटिंग अप न्यू अपॉइंटमेंट्स, गेटिंग न्यू वर्क अपॉर्चुनिटीज. बहुत ही अच्छा मेष राशि के लिए समय है. और फिर मेरे पास है टॉरस यानी कि टॉरियंस. टॉरेंस के लिए जो कार्ड है वो ये दिखा रहा है. देखिए टॉरेंस, आपके लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं, यू हैव लॉट ऑफ थिंग्स इन गोइंग ऑन इन योर लाइफ, बट यू डू नॉट हैव द वैल्यू ऑफ इट. You do not take that, okay, this is there, I should be happy, I should be in gratitude, I should bless the universe, I should not, I should take the blessings of the universe. No, आप ये नहीं करते हैं. What you are saying, अरे I don't have this small little thing which I don't have, the focus is there. So Taurians, you have to change your thought processes. आपको अपना thought process बदलना पड़ेगा. आपको ये देखना पड़ेगा कि मेरे पास ये लिस्ट में 9 चीजें हैं, जो एक चीज नहीं है उस पर फोकस करना बंद कीजिए. नहीं तो जो गुड टाइम्स हैं, जो आपका जो गुड कर्मा है, या फिर जो आपका एक थॉट प्रोसेस है कि मेरी लाइफ सब कुछ चल रही है अच्छी, वो चीज आपके हाथ से चली जाएगी. दूसरा, आपको कार्ड से कह रहे हैं कि अगर आपको ये सप्ताह कुछ सेक्रीफाइस करना है तो प्लीज करिएगा. कोई स्पिरिचुअल काम आपको करने के लिए बोल रहे हैं, और वो स्पिरिचुअल काम आपके लाइफ में कुछ भी हो सकता है. आप ऑर्फनेज जा सकते हैं, ओल्ड एज होम जा सकते हैं, किसी का दान कर सकते हैं, किसी को लंगर खिला सकते हैं, कुछ भी करिए. बट टॉरियंस अगर आप करेंगे तो आपको स्पिरिचुअलिटी यानी कि कुछ ना कुछ आपको यूनिवर्स से गिफ्ट मिलेगी. गिफ्ट का मतलब ये नहीं कि आपके पास बहुत ज्यादा पैसा आएगा. नो, इट इज कॉल्ड फॉर द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिवेशन. सोल एवोल्यूशन के लिए आप आए हैं, राइट? आप अपनी आत्मा की ग्रोथ के लिए आए हैं. तो वो चीज में आपको इजाफा रहेगा. बहुत सारी चीजें आपके पास आ रही. जिनके पास जॉब नहीं है उनको जॉब मिलेगा. हालांकि आप बोलोगे मुझे वो जॉब पसंद नहीं है, you will not be liking that job, but you need to understand this is the only job for you right now. Take it up and don't wait for a next job. और फिर we see मिथुन यानी कि Gemini. Okay, Geminis, there is something around you which is not happening. There is something, either a relationship is not working out or your work is not working out and you are not very happy about it and you really don't know what to do. And the cards are indicating that even though you have lot of benefits in this world, you have lot of things in the world, you have the skill set. आपके पास स्किल्स हैं, आपके पास बात करने का तरीका, आपके पास पैसा है, आपके पास हुनर है, yet वो बाहर के लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं. You are not able to send it across and this is giving you a kind of problems. मिथुन राशि में आपको ये भी बोलूंगी कि there is some loss going to happen this week, so be very careful. अगर कोई get rich scheme है, ये ले लो, 50 लाख कम है, ये ले लो, 10 लाख का 50 लाख हो जाएगा. आपको ये सप्ताह नहीं करना है. If you do anything which is not right, which is legally not right, वो बहुत सफर करोगे. अगर कोई व्यक्ति आपका प्रियजन हॉस्पिटल में है तो शायद थोड़ी सी उनकी तबीयत खराब हो सकती है, शायद नहीं खराब होगी. आपको उनका ध्यान देना है, आपको उनके साथ रहना है एंड आपको उनके ब्लेसिंग्स लेने हैं. तो ये था मिथुन राशि का फल. आइए देखते हैं कर्क राशि यानी कि कैंसर. व्हाट इज दिस वीक
speaking for the Cancer. Now please understand, हम जब करते हैं तो when I do this tarot, I think about the Cancerians and those who have the faith, उनको बिल्कुल लगता है कि हाँ ये मेरे लिए ही बना है, बिकॉज मैं उतने शिद्दत से ये काम करती हूँ. अब जो मैंने कार्ड्स निकाले हैं, अगर आपका रिलेशनशिप है उसमें कम्युनिकेशन इश्यूज आएंगे, उसमें प्रॉब्लम्स आएंगे, उसमें आर्ग्यूमेंट्स मुझे दिख रहे हैं. एंड ये आर्ग्यूमेंट्स आर बिकॉज कि मे बी वन ऑफ यू इज नॉट स्पेंडिंग इनफ टाइम विद योर पार्टनर एंड दैट इज वाई इट इज क्रिएटिंग दिस आर्ग्यूमेंट. दूसरा, कुछ क्रिएटिव ब्लॉक्स दिख रहे हैं. इफ यू आर इन अ क्रिएटिव फील्ड, आपके क्रिएटिव ब्लॉक्स दिख रहे हैं. कॉन्फिडेंस है, स्ट्रेंथ है, करेज है. आपको एक काम करना है, मंगल आपको बेसिकली एनहांस करना है. मंगल आपको बेसिकली एनहांस करना है, तो आप एक रेड गेट का ब्रेसलेट पहन लीजिए. अगर आपको कार्नेलियन का ब्रेसलेट पहनना है वो पहन लीजिए. अगर आपके लिए मूंगा सपोर्ट करता है तो मूंगा पहन लीजिए. इट्स गोइंग टू बी रियली रियली नाइस. आइए देखते हैं सिंह राशि के लिए किस तरह से आपका ये सप्ताह रहेगा. सिंह राशि वाले, भगवान, देयर इज सम प्रॉब्लम कमिंग योर वे. सिंह राशि, अच्छा समय नहीं है. जो ये प्रॉब्लम है, सडन डिवोर्स हो सकते हैं, सडन ब्रेकअप्स हो सकते हैं, जॉब लॉस हो सकता है, लेकिन ये सब कुछ आपको पता था, आपने ध्यान नहीं दिया. एंड सो इट इज, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, नोबडी एल्स इज रिस्पॉन्सिबल. सो यू नीड टू बी केयरफुल कि आप क्यों ये इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है. वी ऑल्सो हैव दैट, यहाँ पे फैमिली हैप्पीनेस बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको अपनी फैमिली पे ध्यान देना है ये सप्ताह. और अगर हो सकता है कि अगर आपका डिवोर्स भी हो जाता है या आपका ब्रेकअप भी हो जाता है, डू नॉट वरी, आपको नया रिश्ता अगले महीने में मिल जाएगा. डू नॉट गो आफ्टर द ओल्ड थिंग. प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल. इफ योर पार्टनर इज नॉट happy or does not want to spend time with you, don't force. What I'm seeing is there's a lot of anger between you and your partner. So अगर कोई रिश्ता खराब हो रहा है उसे छोड़ दो, नया रिश्ता जो मैं बोल रही हूँ आ जाएगा. फैमिली, अपनी फैमिली वालों से सपोर्ट लो, ये इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है. किसी को भी ज्यादा पैसे मत दीजिए, पैसे वापस नहीं आएंगे. इस सप्ताह दिए हुए पैसे वापस बिल्कुल भी नहीं आएंगे. वर्गो राशि, आप लोग किसी ऐसे सिचुएशन में दुविधा में फंसे हो कि आपको समझ ही नहीं आ रहा है कहाँ जाओ. इट इज फ्रॉम अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम. इनफैक्ट फ्रॉम जनवरी ऑनवर्ड्स यू आर इन दिस प्रॉब्लम. और आपका जो शनि है वो बहुत ज्यादा भारी है. आपको शनि का उपाय करना बहुत ज्यादा जरूरी है. वो आप प्लीज कर लीजिए, बिकॉज दैट इज अदरवाइज गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. और आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो शनि है ये ठीक भी नहीं हो रहा है. देयर आर पीपल अराउंड यू और ऑल द टाइम क्रिटिसाइजिंग यू एंड यू फील हाईली जज्ड बाय पीपल. इतना करने के बाद भी आपको लगता है ये लोग जो है मुझे जज कर रहे हैं. तो आप चिंता मत कीजिए, ये समय का तकाजा है. एंड जो मुझे दिख रहा है ये सप्ताह आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहने वाला है. देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ सम अनहैप्पी न्यूज कमिंग योर वे एंड दैट अनहैप्पी न्यूज विल रियली 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 गिव यू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. सो यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल. ये सप्ताह आपको जरा भी कुछ बोलते ना नई चीजें शुरू नहीं करनी है. देयर इज गोइंग टू बी अ सडन ब्रेकडाउन और लॉट ऑफ थिंग्स फॉर यू एंड आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ ग्रीफ फॉर यू. सो ये सप्ताह आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है. तो बी वेरी वेरी केयरफुल. आइए देखते हैं तुला राशि के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह. तुला राशि के लिए जो सप्ताह है ये बहुत ज्यादा तकलीफ दे रह सकता है. देर आर प्रॉब्लम्स विच आई एम सीइंग. देर आर सर्टन थिंग्स जो आपको बहुत ज्यादा तकलीफ देगा. अगेन आपके आसपास कोई व्यक्ति है जो बीमार है, जो परेशान है, जिसकी वजह से आप भी परेशान हैं. वहां से आपको कोई खराब न्यूज मिल सकती है एंड यू विल बी लाइक वेरी अनहैप्पी अबाउट इट. बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू रियलाइज दैट वट एवर हैज हैपेंड फॉर द बेस्ट. आपके करियर में मुझे एक ग्रोथ दिख रही है. आपके मुझे ये दिख रहा है कि देयर इज गोइंग टू बी अ ग्रेट सपोर्ट फॉर यू एंड आपको प्रमोशन मिल सकता है. तो एक तरफ आपको खराब न्यूज मिलेगी, एक तरफ करियर में आपको बेनिफिट मिलेगा ना. हो सकता है कि आपका कोई रिलेशनशिप भी टूट सकता है. सो इसके लिए केयरफुल रहिएगा. फिर हमारे पास आते हैं वृश्चिक राशि. वृश्चिक राशि के लिए तो टाइम बहुत ज्यादा अच्छा है. टाइम इज वेरी वेरी गुड बट यू आर नॉट मेकिंग द मोस्ट ऑफ इट. यू आर स्टिल इन दैट थॉट प्रोसेस कि शुड आई डू दिस और शुड आई नॉट डू दिस. And it can be anything. It can be a relationship, it can be a career, it can be anything. And because of this, nothing is shifting in your life. You are stuck. Now, there are certain hard decisions आपको लेने हैं. आपको ऐसे ऐसे कुछ decisions लेने हैं, ऐसे ऐसे आपको काम करने जो आपके लिए अच्छे नहीं है. इन द सेंस कि शायद हो सकता है कि ये रिश्ता मेरे लिए नहीं चल रहा. मैं बहुत प्यार करता हूँ अभी तक इस व्यक्ति को, लेकिन मैं उसको छोड़ नहीं पा रहा हूँ. बट शायद आपको छोड़कर आगे बढ़ना है. ये भी हो सकता है कि आप है ना अब कोई जॉब कर रहे हो एंड द जॉब इज नॉट सूटिंग यू, द बॉस इज नॉट गुड, द सर्कमस्टेंसेस आर नॉट गुड, लेकिन फिर भी आप डर के मारे जॉब करें. तो छोड़ना है, ढूंढिए दूसरा जॉब और आपको डेफिनेटली मिलेगा. द द सन कार्ड इज देयर.
आपको पता है आप अपने नेम एंड फेम से वंचित हो रहे हैं just because you're in stagnancy and the universe is pushing you. I would like you to say that take that hard decision this week and move ahead. और फिर हमारे पास आते हैं सेजिटेरियस। सेजिटेरियस के जो कार्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे कार्ड्स हैं। आपको कोई इनहेरिटेंस मिल सकता है या कोई लॉटरी लग सकती है, आप उस पर ध्यान रखिएगा। कोई आपके लिए आएगा और जैसे ना लोग शादी के लिए ढूंढ रहे तो आपके लिए जो पिछला रिश्ता खराब हो गया था या फिर वो नहीं चला था वो वापस से आएगा आपके लिए एंड आपकी यहाँ पे बात बन सकती है। मुझे ट्रैवल दिख रहा है, आउट ऑफ इंडिया भी आप ट्रैवल कर सकते हैं। आपको यहाँ से दूर जाना है, जैसे आपको यहाँ से 400-500 किलोमीटर का आपका ट्रैवल दिख रहा है, प्रमोशन दिख रहा है, ग्रोथ दिख रही है, मैरिज भी दिख रही है। सिर्फ आपको एक काम करना है कि थोड़ा सा इस हफ्ते स्पिरिचुअली भगवान को याद करना है हर दिन 5 मिनट। आप फिर देखिएगा कि आपकी लाइफ में कैसे कैसे चमत्कार होते हैं। और फिर हमारे पास आती है मकर राशि। मकर राशि के लिए तो बहुत ही अच्छे कार्ड्स हैं। You are going to get a lot of benefits in your life. Ace of the Queen of Swords has come for you. The Queen of Swords which has come, one minute, आपके लिए बहुत बेनिफिट है। द क्वीन ऑफ सोर्स हैज कम फॉर यू एंड दिस इज गोइंग टू हेल्प यू। तो बेसिकली ये बता रहे हैं कि आपको एक इमोशनल माइंडसेट से लॉजिकल माइंडसेट पे जाना है। इमोशनली हटा के आपको मेंटल जो है वो स्ट्रांग बनना है। आगे पढ़ाई करनी है, फोकस करना है। ये हफ्ता आपको सिर्फ फोकस करना है काम पे और कुछ नहीं करना है। काम पे, करियर पे पढ़ाई करनी है। पढ़ाई के लिए आपको आगे एडमिशंस के लिए काम करना है, इंटरव्यूज देने। दोज आर द काइंड ऑफ थिंग्स यू हैव टू वर्क ऑन। डू यू अंडरस्टैंड? नथिंग एल्स एंड इट्स गोइंग टू बी ग्रेट फॉर यू। इमोशंस भी मुझे दिख रहे हैं, ग्रोथ भी दिख रही है, ट्रैवल भी दिख रहा है, ट्रैवल फॉर वर्क दिख रहा है। और आइए देखते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए कैसे कार्ड्स हैं। कुंभ राशि के लिए जो कार्ड्स हैं वो थोड़े से परेशानी वाले कार्ड्स हैं। देयर इज समथिंग दैट इज गोइंग टू हैपन द फर्स्ट 9 days which are going to be very tough for you, but do not worry. This tough times जो है वो लास्ट नहीं करेगा। टफ टाइम्स डोंट लास्ट, टफ पीपल डू। सो कुंभ राशि वालों मैं आपको बोलूंगी कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप बहुत अच्छा आपके लिए समय है, आप आगे जाइए, आपको काफी 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 बेनिफिट मिलेंगे। फिर हमारे पास है मीन राशि। मीन राशि वाओ क्या कार्ड्स है। इट्स गोइंग टू बी ग्रेट फॉर यू। मनी, वेल्थ, सक्सेस, फेम, नेम, ट्रैवल, बाइंग ऑफ न्यू व्हीकल्स, बाइंग ऑफ न्यू प्रॉपर्टीज एंड यहाँ जो मुझे दिख रहा है कि आपको आशीर्वाद बहुत आएगा एंड योर फादर फिगर अराउंड इज गोइंग टू हेल्प यू, योर बॉस इज गोइंग टू बी सपोर्टिव ऑफ यू एंड अ न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी कैन कम योर वे। या आपको नया घर खरीदना है तो ये समय बहुत अनुकूल है। द हाउस दैट यू गेट एट दिस टाइम इज गोइंग टू बी ग्रेट फॉर यू। सो यू प्लीज गो अहेड एंड डू एंड ट्रैवल एंड डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। मीन राशि आपके लिए बेस्ट कार्ड्स आए हैं, तो जस्ट एंजॉय योर टाइम। ओके तो ये था 12 राशि का फल। मैं आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। अगर आप जितना शेयर करेंगे ना उतना लोगों तक पहुंचेगा।